Hello students, welcome back to my channel Concepts Clear Easily. In this video, we will continue the chapter Light. We have already started the chapter Light in our previous video. In that video, I have already discussed what is light and what are the sources of light. What is a natural source of light and what is artificial source of light. We have already discussed what are rays of incident, what are reflected rays, point of normal, and also we have discussed the laws of reflection, first law of reflection and second law of reflection. And in this video we will discuss what is regular reflection, what is irregular reflection, and what is real and virtual images. If you have already not visited my first video, then I will give the brief description or link of that chapter in this video of mine. And now we will continue with what is regular reflection and what is diffused or irregular reflection. But before that, do subscribe to my channel, share it with friends, and also don't forget to like my videos. Also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming topics and upcoming chapters. So let's start with what is regular reflection. As you already know, हमने पहले क्या किया था कि मिरर्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं. तो रिफ्लेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. रिफ्लेक्शंस आर ऑफ टू टाइप. क्या होती हैं वो? रेगुलर रिफ्लेक्शंस और irregular reflections. The bouncing back of light after the striking of the surface in the same medium, that is known as reflection. As you know, जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और वो बाउंस बैक होती है in the same medium, that is known as reflection. And reflection is of two type, regular reflection and second one is diffused or irregular reflection. अब regular reflection क्या होती है? Regular reflection में क्या होता है? A parallel beam of incident light is reflected and parallel beam of incident light is incident as parallel beam of light and it is also reflected as a parallel beam of light. It occurs only in smooth surface like mirror or some clear बिल्कुल क्या कहोगे smooth surfaces. तो इसका मतलब समझ आया? नहीं आया होगा. मैं आपको अब इसको लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ. रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर और सम प्लेन सरफेस और शाइनिंग सरफेस. जिसका बिल्कुल प्लेन मिरर मतलब प्लेन सरफेस होता है, उस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है. मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँगी. ये देखिए पैरेलल क्या होता है? पैरेलल तो आपको पता है ना, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हो, मतलब बिल्कुल सामने सामने हो. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर सरफेस और सम शाइनिंग और स्मूथ सरफेस. ये पैरेलल बीम है, ये इंसिडेंट हो रही है. इंसिडेंट मतलब ये इस पे पड़ रही है. एंड इसका फिर क्या होता है? Then the reflected rays are also they are reflected also in parallel beam. तो क्या है? ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे है, पैरेलल की तरह पड़ रही है, एक पैरेलल बीम की तरह पड़ रही है. एंड रिफ्लेक्टेड रे है जो वो भी क्या हो रहा है? दैट इज आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम. तो वो भी एक पैरेलल बीम की तरह ही वापस जा रही है फ्रॉम द स्मूथ सरफेस. तो क्या हुआ? जो इंसिडेंट रे है दैट इज आल्सो कमिंग और इंसिडेंट that is also getting incident on the plane mirror in a parallel type of direction, parallel side. तो और जो reflected ray है that is also getting parallelly reflected. तो पैरेलल ये आई है, फिर ये भी पैरेलल गई है. तो अगर आपकी आंख यहाँ पे है रिफ्लेक्टेड रे में, तो यू विल सी द क्लियर कट एंड शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होती है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है और वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और आपकी आंख में आती है. सो यू कैन गेट द क्लियर एंड शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट.
ये सिर्फ एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो रेगुलर इन्फेक्शन कुछ नहीं है, मतलब आपको शायद जो बुक्स में दी हुई है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करके डेफिनेशन दी हुई होती है इसकी। ये सिंपल है, एक पैरेलल बीम एक स्मूथ सरफेस पे पड़ती है जो बिल्कुल स्मूथ होता है, और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है लाइट वो भी पैरेलल ही होती है, और आपकी आई साइड इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जहाँ पे पैरेलल जो लाइट है रिफ्लेक्ट बैक हुई है। देन यू विल गेट द शार्प एंड क्लियर कट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है पैरेलल, ये है आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ क्या होती है ये रिफ्लेक्शन। अब सेकंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थी, वो थी इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एज द नेम सजेस्ट, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की अपोजिट है, और ये किससे होती है, वो तो हुई थी स्मूथ सरफेसेस से, और ये होती है इरेगुलर सरफेसेस से। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल द लाइट दैट फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस is not reflected in a definite direction. It is produced on a rough and uneven surface like paper, cardboard, unpolished objects, wood, etc. तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, इसका भी मतलब सिंपल है कि जो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या देख रहे थे, एक पैरेलल बीम आई है और वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक हुई है, क्योंकि जो आपका नीचे सरफेस था दैट वाज स्मूथ। बट इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो आपका सरफेस है जिससे मतलब रेस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो वो क्या है, वो इरेगुलर है या स्मूथ नहीं है। दैट कैन बी ए कार्डबोर्ड, दैट कैन बी ए पेपर, जिसका भी सरफेस स्मूथ नहीं है, तो उस पे क्या होता है, इंसिडेंट रे मतलब पड़ती है, और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है रे वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट बैक होती है, नॉट इन अ पैरेलल डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि वो वाला जो था, देखिए ये दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो पैरेलल आई, इसका सरफेस इतना स्मूथ है तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी बिल्कुल पैरेलल ही हो गई। अब इसका सरफेस है जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, इसका सरफेस क्योंकि आपका है इरेगुलर, तो इसको पैरेलल वापस जाने की या रिफ्लेक्ट बैक होने की जगह ज़्यादा नहीं मिली, क्योंकि ये कोई इसके कहोगे आप जो कैविटीज बनी है इनके अंदर, इरेगुलर सरफेसेस के अंदर, उनके अंदर आ गई, और उससे क्या हुआ, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल नहीं हुई, ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हुए। तो कहीं पे अगर आपकी आई साइड यहाँ पे है, मतलब आपकी आंख यहाँ पे है, तो आपको यहाँ से भी इसकी इमेज मिलेगी। अगर आपकी आंख यहाँ पे है तो आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, अगर यहाँ पे भी है तो आपको यहाँ पे भी इसकी इमेज दिखेगी। बट जो इमेज दिखेगी वो मड डिफ्यूज्ड होगी और बिल्कुल क्लियर कट नहीं होगी। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में यही डिफरेंस हुआ आपका कि वो पैरेलल बीम आती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में और पैरेलली ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बट डिफ्यूज्ड में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि ये एक इरेगुलर सरफेस से होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो रिफ्लेक्ट रे होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बहुत ज़्यादा शार्प या क्लियर कट नहीं दिखती। तो ये ज़्यादातर जो ये रिफ्लेक्शन है दो टाइप की, दैट इज रेगुलर और इरेगुलर, ये ज़्यादातर आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसको आप जब भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये आप जो लिखेंगे वो तो होगा ही, बट आप इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब क्लियर कट कंसेप्ट चाहिए। टू ऑब्टेन ए रियल इमेज द लाइट रेज कन्वर्ज, वाइल टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज द लाइट रेज डाइवर्स। Real image are the types of image that are formed due to convergence of light ray at a point after being reflected or refracted from a mirror or lens. अब क्या है, मैं फिर मतलब इसको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है। रियल इमेज अगर मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़्यादातर एक्चुअली पढ़ने से समझ नहीं आती हैं, ये जब तक आप इसका एक डायग्राम नहीं देखेंगे ना तो ये थ्योरी समझनी मतलब बहुत टफ होती है। देखिए अब रियल इमेज कैसे बनती है, देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट आया, इस पे से
मतलब इंसिडेंट हुई रेस, चाहे वो प्लेन मिरर है चाहे वो कोई लेंस है। तो अब इस पे से देखिए 2 रेस जा रही है ना, ये मतलब इंसिडेंट हो रही है। अब आपको पता है किसी भी जो सरफेस है उससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो एक रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से हुई, ये वाली जो इंसिडेंट हुई थी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और जो ये इंसिडेंट हुई थी ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो क्या हुआ, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड बैक हुई हैं इमेजेस, मतलब सॉरी रेस, ये एक पॉइंट पे मिली, मतलब कन्वर्ज हुई है। कन्वर्ज होना मतलब ये मीट कर रही हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेस जो आपस में मीट कर रही हैं। तो क्या हुआ, जहाँ पे ये मीट करेंगी उस जगह इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। सॉरी, मैं दोबारा से समझाती हूँ। रियल इमेज थोड़ा सा टफ होता है समझना। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से 2 लाइट गई, ये रेस, सॉरी इंसिडेंट रेस। अब ये वाली रे वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई, और ये वाली जो इंसिडेंट हुई थी ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हुई। जब हम इनको आगे लेके जाते हैं तो ये पॉइंट है इनका कन्वर्जेंस का, जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे से मीट कर रही हैं या कट कर रही हैं एक दूसरे को। तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हैं, वो वाले पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, बट दैट विल बी क्या होगा, अपसाइड डाउन, मतलब वो इन्वर्टेड होगी। ये देखिए, ये इसका सिर ऊपर है, ये इसका सिर नीचे है। तो रियल इमेज की क्या क्या क्वालिटीज हैं? रियल इमेजेस आर टाइप ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस। अब आपको समझ आया कन्वर्जेंस क्या होता है? लाइट रेज एट ए पॉइंट आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम मिरर और लेंस। अब समझ आ गया होगा कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, वहाँ पे रियल इमेज बन रही है। वी कैन ऑब्टेन रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेजेस केवल एक स्क्रीन पे ही मिलती हैं। देयरफॉर टू ऑब्टेन ए रियल इमेज, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द सेम प्लेन। क्योंकि अगर इसी जगह, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, अगर इसी जगह आपकी स्क्रीन होगी तभी आपको इमेज मिलेगी ना, इस जगह से तो आपको नहीं मिल सकती। तो उसका कहना है कि रियल इमेज, टू ऑब्टेन ए रियल इमेज, लाइट सोर्स एंड स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। दोनों को सेम ही जगह होना चाहिए। वी कैन ऑब्टेन द इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव मिरर। तो जो ये रियल इमेज बनती है वो एक कन्वर्जिंग लेंस या उसको कनकेव मिरर कहते हैं, उससे हम रियल इमेज ले सकते हैं। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड इन नेचर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। तो ये सारी रियल इमेजेस की आपकी प्रॉपर्टीज हैं कि रियल इमेज कब बनती है, आफ्टर गेटिंग कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज, और रियल इमेज हमें केवल एक स्क्रीन पे मिलती है। रियल इमेज में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी स्क्रीन है वो एक ही प्लेन में, मतलब इसी जगह होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्ट इधर हो गया और आपकी स्क्रीन इधर होगी, तो दे मस्ट बी इन सेम प्लेन। और जो रियल इमेज बनती है दैट इज इन्वर्टेड, ये उल्टी बनती है। और रियल इमेज कौन बनाता है? रियल इमेज बनाता है कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव मिरर। तो ये सारी क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ आप कहो ये रियल इमेज की है, और रियल इमेज की ज़्यादातर आपसे रियल इमेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रियल इमेज जब मतलब हम 9th 10th में थे, हमारे भी सिलेबस में थी, बट मुझे तो आज तक नहीं समझ आती थी कि रियल इमेज कैसे बनती है, क्योंकि ये जो पढ़ने से जो थियोरिटिकल होता है ना, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कन्वर्ज कहाँ हो रहा है और इन्वर्टेड क्यों बन रही है और स्क्रीन कहाँ होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये इसका जो डायाग्राम होता है, अगर आप डायाग्राम को थोड़े ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा आपकी जो कहेगा कंसेप्ट क्लियर करता है कि ये लाइट इंसिडेंट होती है, वो आके एक पॉइंट पे मीट करता है, और जहाँ पे वो दोनों रेज मीट होती हैं वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है और वो इन्वर्टेड होती है, और ये ही हम कहते हैं रियल इमेज, क्योंकि ये रियली बन रही है, मतलब इसमें कोई आपका झूठ और वो नहीं है, एक आपकी इमेज बन रही है अपसाइड डाउन, तो दैट इज रियल इमेज। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा व्हाट इज रियल इमेज।
अब इसका एक और दूसरा है व्हाट इज वर्चुअल इमेज। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ के मतलब सुनाती हूँ, आप देखिएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। When light from an object is allowed to strike the mirror, then light rays get reflected from the mirror and it looks like that rays are diverging from somewhere behind the mirror. समझ आया? शायद, पता नहीं, काफियों को समझ आया होगा। Actually, no light reaches the behind mirror. Thus, rays appear to meet somewhere, as it is simply the perception of viewer. आप फिर नहीं, अगर मेरे को ये पढ़ना और मैं आपकी एज की हूँ तो मुझे नहीं समझ आएगा। मैं आपको इससे डायग्राम से बताती हूँ। देखिए, अब उसने क्या कहा है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे आई, और जो भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो यहाँ आएगी, वो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही होती। तो जब हम इन चीज़ों को, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये है और आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे ये गई, दोबारा से मैं बताती हूँ, ये एक इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से हो गई, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से हो गई। अगर आप इन दोनों रेज को आगे मिलाने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज की तरफ, तो ये कहीं मिलेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। आपकी रियल इमेज में तो ये मिल रही थी ना, एक रिफ्लेक्ट बैक यहाँ पे हुई और एक रिफ्लेक्ट बैक यहाँ पे हुई, तो दोनों एक जगह पे आप एक दूसरे को काट रही थी। बट इस वाली चीज़ में, वर्चुअल इमेज में क्या हुई, जो आपका मिरर था या आपका लेंस था, उसने एक जो इंसिडेंट रे है उसको इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक किया, एक को इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों, अगर आप इमेज रेज हैं जो रिफ्लेक्टेड, इनको कहीं भी दूर तक भी ले जाएं तो ये कहीं भी आपस में एक दूसरे को काटेंगे नहीं। फिर हम क्या करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस, तो इन दोनों को हम ड्रॉ बैक करते हैं। इसको यहाँ पे पीछे खींच के ले आए, मतलब आप हाइपोथेटिकली इनको यहाँ पे पीछे खींच के लिए आए, मतलब रे को ड्रॉ किया, मतलब, और एक पॉइंट पे ये क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर आपको मीट करती हुई या काटती हुई दिखाई देंगी। फिर से समझाती हूँ कि ये इंसिडेंट रे हुई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई और ये यहाँ पे, ये आगे मिरर के कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी। बिहाइंड द मिरर अगर हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्टेड रेज को, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमें लगेगा ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हैं। जिस जगह वो मीट करेंगी वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। क्योंकि ये रियली में नहीं बनी है, आप इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये बिहाइंड द मिरर बनी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये बिल्कुल अपसाइड, मतलब राइट ही होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है, इरेक्ट होती है। तो और ये कौन बनाता है, ये कनकेव मिरर बनाता है। तो अब आप समझ के देखिए इसको, light rays get reflected from the mirror and looks like, पता लगता है उनको, that the rays are diverging somewhere behind the mirror. Actually, no light reaches the behind the mirror. Thus, rays appear, not exactly appear to meet somewhere. It is simply the perception of, ये हम केवल सोच रहे होते हैं। वर्चुअल इमेज आर नॉट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, वो स्क्रीन पे नहीं ले सकते क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं कि हाँ जी वो मिरर के बिहाइंड बन रही है, कि मिरर, दोनों रेज हैं जो वहाँ पे मिरर के बिहाइंड मीट कर रही होंगी और वहाँ पे उनकी इमेज बनी है। वर्चुअल इमेज इज अपराइट image that can be achieved when rays seems to diverge but not converge in reality. तो क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, मैंने जैसे बताया कि सीधी इमेज बन रही है, और ये कौन बनाता है, with the help of diverging lens और convex mirror we can produce virtual image। तो दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। रियल इमेज आपका जो है मिरर के फ्रंट में बनती है, क्योंकि उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक्चुअली मीट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं एक पॉइंट पे। बट वर्चुअल इमेज जो होती है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट नहीं करती, और वो क्या करती हैं, लगती हैं कि मिरर के पीछे एक पॉइंट पे जाके उनकी रेज मिल रही है, वहाँ पे उसकी इमेज बनती है। तो जो रियल इमेज में है, आपकी जो इमेज बनी है वो उल्टी है, मतलब वो क्या है,
अपसाइड डाउन है, मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, और वर्चुअल इमेज में वो वर्चुअल इमेज जो बनती है वो इरेक्ट बनती है। तो ये सारी चीज़ें थी रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की, और ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये चारों टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को अपना मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। तो ये और जो दोनों आप इसका एक्सप्लेन करेंगे, इन दोनों को भी आप डायग्रामेटिकली ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डायग्रामेटिकली ही एक्सप्लेन होके आप ढंग से मतलब बता सकते हैं, नहीं तो थ्योरेटिकली इनको बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। अब एक और चीज़ है मिरर्स, ड्राइंग अ रे डायग्राम। अब आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, आप उसका डायग्राम बना के दिखाइए। तो देखिए ये एक डक दी हुई है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ढंग से एक डक दी हुई है। तो उन्होंने कहा है इसकी ऑब्जेक्ट आप कहाँ से मतलब इसका आप बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक डक दी हुई है, उसने कहा है अब आप ये बताइए कि जो इसकी इमेज बनेगी डक की, वो मिरर के बिहाइंड मतलब वर्चुअल इमेज इसकी कैसे बनेगी, और आप इसको कैसे मतलब डायग्रामेटिकली आप शो कर सकते हैं। तो क्या है ये देखिए, ये डक है, इससे एक रिफ्लेक्टेड मतलब सॉरी इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। सिमिलरली एक और इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट बैक आ गई। ड्रा एंड इसमें क्या है, ये एक इंसिडेंट रे रेड कलर की दिखाई हुई है और एक इंसिडेंट रे ग्रीन कलर की दिखाई हुई है। इसकी जो रेड की इंसिडेंट रे है वो रेड में ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और ग्रीन वाली ग्रीन में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। अब जब हमने जैसे बताया है जो वर्चुअल इमेज है वो रिफ्लेक्टेड रेज के बिहाइंड द इमेज मीट करने पे बनती है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है आपकी, एक रिफ्लेक्टेड रे आपकी ये वाली है और एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। अब आप इनको मिलाना शुरू कीजिए, इसको डॉटेड 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 करके पीछे ले जाइए। सिमिलरली इसको भी डॉटेड 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 करके पीछे ले जाइए। ये देखिए ये वाली इमेज में इसको हम पीछे ले गए और इसको हम पीछे ले गए। ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हमको मीट करती हुई दिखाई दी, तो ये वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। Extend both reflected rays backwards behind the mirror until they meet. We need to use dashed lines since they are not real. तो हम जो रियल रेज नहीं होती, जो रियल तो ये है ना इंसिडेंट और इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, अब ये हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको हम परसीव कर रहे हैं या हम सोच रहे हैं इनके पीछे ये यहाँ जाके मिलेंगी। एक्चुअली में ये रेज नहीं है, तो हम इनको कैसे दिखाते हैं, हम इनको डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं। तो जहाँ पे ये मीट कर रही हैं वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का, इस डक की मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। ये आप इस ढंग से मतलब आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे किसी चीज़ की इमेज। तो ये वाली चीज़ है, द पॉइंट वेयर एक्सटेंडेड रेज मीट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। ये रहा ये वाली जो इमेज बन रही है, तो ये इस डक की, हम जब इन चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को, तो जहाँ पे वो मीट कर रही है वो ही उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज है। और ये देखिएगा ये वाला डिस्टेंस जितना ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस है, वही ऑब्जेक्ट से जो ये वाला मिरर से इमेज का डिस्टेंस है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है देन इट विल आल्सो बी 2 सेंटीमीटर। मतलब जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है सेम ही इमेज मिरर से दूर होगी। तो ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। इमेज फॉर्म्ड बाय, अब यही उन्होंने प्लेन मिरर से अपराइट मीनिंग, अब जो प्लेन मिरर की जो इमेजेस हैं मतलब जो इमेज बनाता है उसकी क्या करैक्टरिस्टिक हैं, अपराइट मीनिंग इट इज द सेम वे अप एज ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि अगर मिरर में आप अपसाइड डाउन मतलब अपसाइड खड़े हैं तो मिरर भी, प्लेन मिरर भी आपकी इमेज कोई इन्वर्टेड नहीं देता। आप मिरर के सामने खड़े होते हो वो भी
ऊपर की साइड ही होती है। मतलब आपका सिर ऊपर है तो मिरर में भी आप ऊपर दिख रहे होते हो, ऐसे तो दिख नहीं रहा होता कि मिरर में आपका सिर नीचे चला है और टांगे ऊपर चली जाए। तो वो प्लेन इमेज के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं उसकी करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज बता रहा है। द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो इस डक का साइज था उसी का ये साइज है। तो आप जितने साइज के हो, आपका जो साइज है, आपकी जो हाइट है, आपकी जो बॉडी आपकी मिरर में सेम ही बनती है। मतलब सेम साइज जो है आपका, जो आप हो, आपकी जो इमेज मिरर में बन रही है वो बिल्कुल सेम है। लिटरली इन्वर्टेड मीनिंग द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर एज द राइट साइड ऑफ। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये कैसे समझा सकते हैं? आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए अभी और अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए और देखिए अपना जो मिरर में दिख रहा है, तो वो जो मिरर में अंदर है आपका इमेज, उसका कौन सा हाथ खड़ा हुआ है? आपको लगेगा वो लेफ्ट है, क्योंकि यही जो इमेज है उसकी क्वालिटी होती है। इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जो अगर आप अपना लेफ्ट साइड का हाथ उठाते हैं तो जो मिरर में आपकी इमेज दिख रही है उसका राइट हैंड साइड दिखेगा, और ये भी एक मिरर की इमेज की क्वालिटी होती है। द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। ये मैंने आपको बताया था कि जितना ये इससे दूर है सेम इतना ये इससे दूर है। तो ये सब कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हैं। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं या क्वालिटीज होती हैं? ये सारी क्वालिटीज उसकी हैं कि वो सेम साइज की बनती है, सेम शेप, सेम कलर, और क्या होता है ये से मतलब इरेक्ट होती है, कोई मतलब इन्वर्टेड नहीं होती। लेटरली इन्वर्टेड होती है कि उसका लेफ्ट तो उसका राइट, ये वाली चीज होती है। और उनके बीच में जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस होता है, सेम आपकी इमेज और आपके मिरर के बीच में डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये 3-4 टॉपिक जो मैंने लाइट में से कराए हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान लगा के अच्छे से करना होगा। थोड़ा सा एक बारी में टफ लगता है, बट जब आप इसको 2-3 बार करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली इसको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहीं पे ये टॉपिक्स ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स मतलब काफ़ी जो लाइट के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं डिफरेंट पार्ट्स में ये वीडियोस बनाऊंगी, लाइट को कवर करूंगी डिफरेंट वीडियोस के पार्ट्स में। और तब तक आप इन चीज़ों को पढ़िए। अभी तक लाइट के हमारे 2 वीडियोस हो चुके हैं। पहले वाला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कवर कर रहा है और ये टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेजेस कवर कर रहा है, और थर्ड पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। और तब तक आप इसको पढ़िए और अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयार कीजिए। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय।